हेलो एवरीवन, वेलकम टू अन अकेडमी इंस्पायर। मैं हूं आपकी होस्ट मनीषा केलकर और आज हम हैं ओल्ड राजेंद्र नगर में। वही सवाल जो सबको बहुत सताता है, बाबा यूपीएससी करने में कितना खर्चा आता है? Is it cheap? Is it expensive? Or is it affordable? You want to find out? Let's go. गाइज, मुझे कुछ एस्पिरेंट्स दिखे हैं जो बुक्स खरीद रहे हैं। यू वांट टू फाइंड आउट? कम। हे हाय। Hi, Naman. हाय हेलो। Since how long are you prepping? I've been prepping since last year though. I've just like graduated last year, so that's when I started my prep. So how many years for the preparation now? It's been 2 years almost. Actually, I started preparing since my 11th and 12th only. So yeah, after that I've done my graduation year only in DU. Then I came to Karol Bagh. Recently I started my preparation here. कहाँ से हो आप? Gurgaon. गुड़गांव से। Right, Okay. yeah. एक साल गुड़गांव में थे कि यहाँ थे? Gurgaon ही. I've been prepping from my house. I'm from Hyderabad. So from Hyderabad. And you're staying here? Yeah, I'm staying in Karol Bagh only. When it comes to prep, तो सबका अपना अपना रहता है. In my hometown, in Hyderabad also you'll have a more opportunities. Like there are many coaching centers, but here no, you'll have a more availability for this resources here. And everything is you have printed and everything, like books and all easily available here, like comparatively in my place. Helps with competition, helps with discussing things with people. आपके आसपास जितने लोग हैं वो भी prep कर रहे हैं. But staying away from home, staying away from family, तो उसमें काफ़ी फैक्टर्स आते हैं. जैसे आपको अपना खाना हो गया या फिर मेंटेनेंस हो गया, लॉन्ड्री हो गया, एंड ऑल ऑफ दोज थिंग्स. दैट टेक्स अवे टाइम. How much have you spent on the preparation of UPSC? Money, basically my coaching I spent around 1,80,000. Okay, within a year? Yeah, I think it's 10 months course, that's it. And again I have to even take up for optionals also. अराउंड 4 to 5 लाख रुपए खर्च हो चुके हैं. Oh, 1.5 year Yes, में? 3 से 3.5 लाख रुपए खर्च होंगे. 2 साल में? मंथली 12 से 13 हज़ार घर से आते हैं. ठीक है, तो उसी में चलाना रहता है. रूम रेंट देना है, लाइब्रेरी चार्ज देना है, फिर अपना पर्सनल खर्चा है. मेरे अगर मैं पर्सनली बोलूँ तो आई स्पेंट अप्रॉक्सीमेटली 80K to a lakh as of now. That 80K to 1 lakh, the bigger chunk of it, approximately half of that money has been because of a foundational course. Another than the remaining 50%, that's kind of split between an optional course and the CSAT course. What's the most expensive thing that you spent on? Food. Exactly, because here we are in north. I'm from south actually. We don't get proper South Indian food here, and we're not much used to North Indian food. It's like Around 2.5 lakh in coaching and 2.5 रहने का रेजिडेंस वगैरह का. Oh wow, okay. कि अभी इतने एक्सपेंसेस जो आपने कहा उनके बारे में, तो ये आप खुद कर रहे हैं? इनके लिए कुछ पार्ट टाइम जॉब है? कैसे हो रहा है? So वैसे तो आई एम नॉट डूइंग अ फुल टाइम जॉब और एनीथिंग. आई डू टीच किड्स इन माई सोसाइटी, तो आई ट्यूटर. दैट इज़ हाउ आई डू माई ओन मंथली एक्सपेंसेस. अब जैसे थोड़ा बहुत सीरीज़ वगैरह खरीदना हो गया, आई मैनेज दैट ऑन माई ओन. बट या कोचिंग का एक्सपेंस जो था, जो मेन कोर्स का एक्सपेंस था, दैट वाज बोर्न बाय माई पेरेंट्स. Overall preparation for UPSC, is it cheap, expensive or affordable? Again, each to his own. You need to be smart about it. You need to figure out where you are spending. I'll be very honest, because maybe when I started my prep, मेरे को बहुत चीज़ों का idea नहीं था. I could have made it cheaper, even though I know people are spending way more than I am also. I cannot say this is expensive because there are a few of my friends who are staying in Karol Bagh only with very limited expenses. They are preparing UPSC, having good food and all. So it depends upon how we spend the money. So if you want to give some tips for the new aspirants, what would it be? I would say just don't waste your time coming here in Delhi spending on other stuff. I'd say हर किसी से मत पूछो, but then have some people that you can trust and ask things who are more experienced than you in the particular field you're going for. इस केस में UPSC. हम पहुंच गए हैं ORN की सबसे फेमस चाय टपरी पर, और चाय टपरी पर हमें कौन मिलता है? UPSC एस्पिरेंट्स. चलो लेट्स फाइंड आउट हु विल टॉक टू अस. अभिषेक. ये आपका नाम? सौम्य यादव. आप कब से तैयारी कर रहे हो? 1 year. 1 साल से? It's have been 1 year.
मैम अभी तो मुझे लास्ट 3 साल हो गए पढ़ते पढ़ते। जब मैं ग्रेजुएशन में था सेकेंड ईयर से, तो तब से ही स्टार्ट किया है प्रिपरेशन। दिल्ली में कहाँ रह रहे हैं? मैम अभी तो मैं करोल बाग में ही रह रहा हूँ, तो पीजी में अच्छे से खासे एक रूममेट के साथ शेयरिंग में रह रहा हूँ अभी। झंडा वाला, इट्स नियर बाई 1 किलोमीटर। ओके, नहीं, मैंने 1 साल से कोचिंग ज्वाइन करी, तो फिर 1 साल से मैं यहाँ पे हूँ। यहाँ पर हो। ये यूपीएससी की तैयारी में आपका कितना खर्चा हुआ है? मैम लगभग तो अभी मतलब कि 3-3.5 लाख रुपए तो वैसे भी पूरा खर्च होने वाला है 1-1.5 साल में आगे के। तो अभी तक तो मतलब 2 लाख रुपए तो वैसे भी खर्चा हो गया है मेरा। 4.5 to 5 lakh. फॉर अ ईयर? हाँ। 4.5 to 5 lakhs a year. Apart from coaching fees, it will be minimum 15 to 20K per month. कोचिंग की तो आप सबको पता ही है, और रहने का कॉस्ट अप्रॉक्स मान लीजिए 25-30। आपको क्या लगता है यूपीएससी प्रिपरेशन के लिए जो खर्चा आता है, इज इट चीप, इज इट एक्सपेंसिव और इज इट अफोर्डेबल? आई थिंक इट्स एक्सपेंसिव लिटिल बिट। तो अभी तो मुझे लग रहा था कि बहुत ज़्यादा एक्सपेंस चले जाएंगे, मतलब कि 20-1 हज़ार। पर ठीक है, एक मिडिल क्लास बच्चे के लिए 12-13 हज़ार भी बहुत हो जाता है, मतलब कि वो एक्सपेंसिव के कैटेगरी में आता है। तो मेरे अभी सेविंग वगैरह तो ठीक है, मुझे लगता है अफोर्डेबल है। पर अगर एक टाइम पे जब सेविंग ख़त्म होने पे आएगी तो लगेगा ज़रूर कि ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। पर आपको मैं कुछ टिप्स पूछूं, अगर इसको थोड़ा सा अफोर्डेबल करना चाहे बच्चे तो क्या कर सकते हैं? If they have guidance, so I think they can prepare from home also. They don't need to join coaching and all. यार ORN में घूमते घूमते मुझे भी यूपीएससी एस्पिरेंट जैसा फील होने लग गया है। और यूपीएससी एस्पिरेंट को क्या चाहिए? थोड़ा सा न्यूट्रिशन। सो मैंने भी सोच लिया थोड़ा सा नारियल पानी हो जाए। तो कितने साल हुए प्रिपरेशन करके? अभी मेरे को 1.5 month हुए हैं। 1.5 month? 1.5 year हुए हैं। ओह, 1.5 year। मैं 2 साल से तैयारी कर रहा हूँ। कहाँ से हैं आप? आई एम फ्रॉम बिहार। कोचिंग में मोस्टली 2 लाख रुपीज़ कोचिंग में खर्च हो गए हैं और 3 लाख रुपीज़ अराउंड फूड, शेल्टर और यहाँ रहने का और मिसलिनियस जो भी कॉस्ट लगे उसमें खर्च हो। मैंने कोचिंग नहीं लिया है। आजकल कंटेंट क्या है कि टेलीग्राम पर लेक्चर वगैरह आ जाते हैं, तो टेलीग्राम एक अच्छा एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे मुझे मतलब लेक्चर, PDF फाइल्स, इवन टेस्ट सीरीज भी आ जाते हैं और इवन ओपन टेस्ट भी यहाँ पे हो रहा है जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, तो हम लोग के लिए एक बेनिफिट है। आपने ये नहीं सोचा कि अभी अपने होम टाउन में बिहार में रह के ही पढ़ाई की जाए? वहाँ पर रह कर के तो सही है, बट थोड़े यहाँ पर इन्वायरमेंट और दोस्त वगैरह, मेंटरशिप और स्टूडेंट गाइडेंस जो यहाँ प्रोवाइड हो पाती है वो शायद वो घर पे ना हो। वेरी ट्रू। इन्वायरमेंट भी चाहिए यूपीएससी के लिए। फॉर एग्जाम्पल आप बिहार में रह के तैयारी कर रहे हैं या फिर दिल्ली में रह के कर रहे हैं, वो भी इंग्लिश मीडियम में, क्योंकि आपका एक्चुअली मुखर्जी नगर हिंदी मीडियम बेल्ट है, तो वहाँ पे प्रॉब्लम होता है हिंदी मीडियम के साथ, क्योंकि रिसोर्सेज की कमी हिंदी मीडियम में। और दूसरी बात क्या है कि इंग्लिश मीडियम में रिसोर्सेज अच्छे हैं, कोचिंग के उपलब्ध अच्छे कोचिंग है यहाँ पे, और वो कोचिंग वाले रिसर्च करते हैं यूपीएससी का कैसा सिलेबस है, कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं हर साल। पर अगर आपको ऑप्शन दिया जाए अच्छे मेंटोर्स वगैरह हो तो डेफिनेटली मैम घर को कौन नहीं छोड़ना चाहता है, अगर अच्छे गाइडेंस के साथ अगर घर पे मिल जाए तो। इवन आप अगर रूरल एरिया में हैं तो आजकल 5G का ज़माना आ गया है, तो गाँव से भी आप रहकर तैयारी कर सकते हैं। यूपीएससी की तैयारी के लिए अगर आप दिल्ली सेटल नहीं हो सकते या तो फिर आपके पास लाखों रुपए नहीं है स्पेंड करने के लिए, देन अनअकैडमी का फाउंडेशन कोर्स इज जस्ट द राइट थिंग फॉर यू। एट 50% ऑफ आपको यहाँ टॉप एजुकेटर्स सिखाएंगे, जैसे डॉक्टर मृणाल, सुदर्शन सर और सरमत सर। इसके सारे डिटेल्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। यूपीएससी प्रिपरेशन की जो एक्सपेंसेस है वो आपको क्या लगता है? इज इट वेरी एक्सपेंसिव, इज इट चीप और मॉडरेट? अगर आप लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास फैमिली से भी आते हैं और जो कि इस यूपीएससी प्रिपरेशन में करने वाले मैक्सिमम लोग हैं, 90 to 95% लोग आई थिंक होने चाहिए, तो मेरे को लगता है ये एक्सपेंसिव तो है मैम। देखिए आप पार्ट टाइम जॉब करके और कुछ घर से पैसे मंगा कर तैयारी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। तो आप कुछ पार्ट टाइम जॉब कर लें, कोचिंग से भी जुड़ सकते हैं, आप कॉपी वगैरह भी जांच कर सकते हैं या ट्यूशन पढ़ा सकते हैं मेरे तरह। हाय गाइस, व्हाट्स योर नेम? Hello, my name is Trishna. कृष्णा। हेलो, माय नेम इज़ अभिषेक। अभिषेक। आयुष नाम है मेरा, आयुष कुमार, हरियाणा से। हरियाणा से। हाँ जी। और आप? हाय, माय नेम इज जुनैद, आई एम फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर। आपका जो प्रिपरेशन है वो कब से चल रहा है? मैंने अपना प्रिपरेशन ग्रेजुएशन के टाइम से स्टार्ट किया था। और मेरा ग्रेजुएशन ख़त्म होते मैं इधर पे आ गया कोचिंग करने के लिए। कितने साल हो गए? 2 साल हो जाएगा मेरा। 2 साल प्रेप कर रहे हैं आप? मैं 1 साल, लगभग 1 ही साल हुआ होगा। ग्रेजुएशन के बाद मैं भी आई हूँ। वैसे हम बेचमेट्स हैं, तो फिर ये पहले आया था, देन आफ्टर 1 ईयर मैं यहाँ पे आई हूँ। वैसे मैंने भी 12th एक्चुअली आई वाज इन आर्मी पहले, आई सर्व्ड एज अ लेफ्टिनेंट, तो थोड़ी मेडिकल कंडीशंस की वजह से आई गॉट आउट फ्रॉम द आर्मी, फ्रॉम द एकेडमी एक्चुअली।
तो उसके बाद से आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी। हरियाणा छोड़कर यहाँ पर पढ़ने आ गए, व्हाई हैव यू डन दैट? ग्रोथ ज़्यादा है ऐसे ही बताऊँ तो, अच्छा। क्योंकि डाइवर्सिफाई बच्चे हैं, सीखने को ज़्यादा मिलता है। और हमारे वहाँ थोड़ी कोचिंग की कमी है जी। कमी है? हाँ, थोड़ी सी कमी है, क्योंकि इस लेवल पे नहीं होते। एक होता है ना कि फिजिकली आपको जो मिलता है ना वो वर्चुअली मिलना थोड़ा मुश्किल है। हाँ, मेरे हिसाब से तो मैंने इतने दिनों में जो भी देखा है, मुझे अभी तक लगा है कि पर्सनली जाके मिलके जो चीज़ होती है वो समझाने पे जो इम्पैक्ट आता है वो मे बी मेरे हिसाब से यहाँ ही मुझे बेहतर मिला है। बट द थिंग इज कि यहाँ पे कंपटीशन है, दूसरे को देख के नहीं वो पढ़ रहा है तो मैं क्यों नहीं पढ़ूँ। फीलिंग ऑफ जेलिसी इज गुड, बट द फीलिंग ऑफ डिग्रेडेशन जिसको कहते हैं नहीं उसका नहीं होना चाहिए मेरा होना चाहिए, वो सही नहीं, बट फीलिंग ऑफ जेलिसी इज गुड। अब तक आपका सबसे ज़्यादा पैसा किस पे खर्चा हुआ है? ऑफ कोर्स कोचिंग। जी कोचिंग पे। एक तो कोचिंग की फीस लग गई 1 लाख। हाँ, और यहाँ पे रहना खाना पीना में चले जाते हैं जी 15,000 चले जाते हैं। 15,000 महीने के, हाँ जी। है ना? आप क्या टिप्स दोगे जो नए एस्पिरेंट्स है कि कुछ अगर पैसे बचाने हो तो क्या करना चाहिए? ऑनलाइन कोचिंग लो, घर से पढ़ाई करो। ओके, अगर सिंगल लाइन में पूछोगे तो, है ना? सही बात है ना कि अच्छे अगर मेंटोर मिले तो व्हाई नॉट, राइट? बिल्कुल। आप अगर घर पे रहोगे तो अगर आप इधर से ऑनलाइन कोचिंग भी लेते हो तो फीस सेम ही रहेगा, पर आपको घर का खाना मिल जाएगा घर पे। अगर आप अच्छे से पढ़ाई कर सको तो इट इज़ अ वेरी वेल फॉर देम कि वो अपना पैसा भी अच्छा खासा बचा सकते हैं और अच्छे से पढ़ाई भी कर सकते हैं। दिस होल यूपीएससी एक्सपीरियंस, इज इट एक्सपेंसिव, अफोर्डेबल और मॉडरेट? जो हमारे जैसे लोअर मिडिल क्लास के हैं या मिडिल क्लास के लिए हैं उनके लिए मॉडरेट भी है और एक्सपेंसिव भी है। फाइनेंशियल कंडीशंस जो फैमिली की होती है उस पर भी डिपेंड करता है। जो मतलब जिसका मतलब बिजनेस क्लास या रिच लाइफस्टाइल होगा उसको तो क्या ही लगेंगे 2 लाख 2.5 लाख। बट जो अपर मिडिल क्लास हैं या लोअर मिडिल क्लास हैं उनके लिए तो 2 लाख भी बहुत होते हैं। एक अच्छा कोचिंग अगर आपको मिल जाए तो वो वर्थ इट है, अगर वो एक्सपेंसिव भी है तो भी वो वर्थ इट है। अगर तुम्हारे पास प्रॉपर एडवाइस है, प्रॉपर गाइड है, अगर प्रॉपर सीनियर्स है देन मॉडरेट है, अगर नहीं है देन हो सकता है कि बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाए और सिलेक्शन भी ना हो उसके बाद भी। ओह ब्रिलियंट मैन, थैंक यू, गुड लक फॉर यू। गाइस शाम हो गई है और ठंड बढ़ गई है। आज पूरा दिन मैंने यूपीएससी एस्पिरेंट से बात की, काफ़ी सारे इंसाइट्स मिले यार, आपको भी मिले होंगे ना? तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखिएगा ज़रूर एंड डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अनअकैडमी इंस्पायर, लेट्स क्रैक इट।